Now you know how to go about these questions, right? So that was question 4 of this set. Let us move towards the set number 5. Is on the screen. So what I would like to give you is about 7 to 8 minutes to spend with this data. Try to create the solution table. Okay, try to use the clues given together and try to see whether you can create the solution table or not. So take about 7 to 8 minutes. That is a stipulated amount of time. अगर उसे ज़्यादा लगता है तो fine, but please make a note of the time that you are requiring. मान लो कि मैंने आपको 7 से 8 मिनट दिया है लेकिन आपको लग रहा है 15 मिनट, so you know that you are running 7 minutes behind. आपको 7 minutes short करना है अपना time, right? So please try to create the solution table. Take 8 minutes, 7 to 8 minutes, and resume when you are done. We will look at the questions. All right. So I hope you have now created the solution table. Correct? चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Who had the highest number of items among the 7 questions, right? जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो है मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी मान सकते हो, बट आई वुड से मॉडरेट, राइट? तो अगर आपका सोल्यूशन टेबल बन गया है तो यू शुड टेक अबाउट 45 seconds to solve this question, not more than that. बट अगर आपका सोल्यूशन टेबल नहीं बना है, I would still like to give you 3 more minutes. Try and complete your table and then solve this one. So pause the video for about 45 seconds, mark your answer, resume after you are done. Okay, so I hope you are done by now. That is question 1. Keep a note of your answer. Question 2. How many persons had a higher number of items than Anand? So once again, अगर आपका table ready है तो you should take about 30 to 45 seconds, not more than that. But अगर आपका table नहीं बना है, I would like to give you 3 more minutes. So pause the video for appropriate amount of time. Try to solve the question and resume after you are done. Alright, so that was question 2. I hope you have marked your answer. Let's go to question number 3. Who was standing immediately in front of the person with the second highest number of items? Who was standing immediately in front of the person with the second highest number of items? Vikas, Sandeep, Rohit cannot be determined. Right? So once again, take about 45 seconds. If your solution table is ready, pause the video. अगर आपका solution table ready है, take 3 more minutes. Try to finish the table first. Resume after you have marked your answer. Alright, so I hope by now you are done with this question. Let's go to question number 4. For how many persons can it be said that all the persons standing in front of them have a lower number of items than them? Interesting question. Language थोड़ा सा difficult है. I'm going to give you 2 minutes, even if your table is ready. और अगर table ready नहीं है, take about 4 to 5 minutes. और अगर table ready है तो 2 मिनट में ये solve हो जाना चाहिए. Pause the video for appropriate amount of time. Try to solve it. Mark your answer and resume the video. Alright, so I hope you have marked the answer. I believe we have only 4 questions. Let's just verify. Yeah, we have only 4 questions. So let's go to the data and let's try to understand what has been given. Let's try to understand कैसे solve करेंगे, table कैसे बनाएंगे and so on. चलिए, exactly 7 persons: Anant, Imran, Rohit, Sandeep, Vikas, Yuvraj and Uday. They were standing in a queue, not necessarily in the same order, of course. Otherwise, फिर question देने का मतलब नहीं रहेगा. At a billing counter in a supermarket, for billing the items that they wanted to purchase, the number of items that each person wanted to purchase is a distinct positive integer less than 8. देखिए ये एक बहुत important statement है. The number of items that each person wanted to purchase is a distinct positive integer less than 8. कितने लोग हैं? 7 persons हैं. तो number of items कितनी होंगी? 7. 1 to 7. मतलब there will be someone जिसके basket में एक item होगी, there will be someone जिसके basket में 2 and so on. The highest number of items one can have is 7. है ना? The following information is known about the number of items with each of them and their position in the queue. देखिए position in the queue ये एक चीज and number of items with them ये दूसरी चीज. तो अब हमें पता चल चुका है हमारे पास डेटा में क्या होना चाहिए, करेक्ट? तो चलिए ट्राई करते हैं डेटा बनाने का. ओके, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन, नंबर ऑफ आइटम्स एंड नेम, राइट? सो व्हाट इफ हम लोग पोजीशन से स्टार्ट करें?
position, name, number of items. We know that there are going to be 7 positions, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. So हमारे टेबल का प्राइमरी कॉलम है पोजीशंस, उसके हिसाब से हम टेबल में डिटेल्स फिलअप करेंगे. चलिए, लेट्स गो टू द डेटा. Rohit, who was standing immediately behind Yuvraj, wanted to purchase 3 items more than Yuvraj. एक बार फिर से, रोहित जो है, Rohit was standing immediately behind Yuvraj. He wanted to purchase 3 items more than Yuvraj. इसको हम कैसे लिखेंगे? So रोहित जो है वो immediately behind युवराज. अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई आप यहाँ लिखिए रोहित जो है वो बिहाइंड युवराज, मतलब युवराज उसके आगे होना चाहिए इमीडिएटली. मतलब वो दोनों इस बॉक्स में ऐसे आएंगे, या तो यहाँ यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ. इसका मतलब हम एक ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं कि रोहित भैया जो है वो पहले नहीं हो सकते, बिकॉज वो किसी के पीछे है. तो पहले में रोहित कैंसिल, और युवराज जो है वो लास्ट में हो सकता है, तो लास्ट में युवराज कैंसिल है ना. ओके, हमें ये भी दिया हुआ है कि रोहित जो है, रोहित वांटेड टू परचेज 3 आइटम्स मोर देन युवराज. तो अगर युवराज के आइटम्स लेट्स से y है, तो रोहित के आइटम्स कितने होंगे? y+3. रोहित के कितने होंगे? y+3. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. चलो, रोहित के पास हाईएस्ट कितने आइटम हो सकते हैं? 7. रोहित के पास हाईएस्ट कितने आइटम हो सकते हैं? 7. तो अगर रोहित के पास 7 है तो ये कितने होंगे? 4. अगर रोहित के पास 6 है तो ये कितने होंगे? 3, है ना. अगर युवराज के पास 2 आइटम्स हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, तो रोहित के पास 5, और अगर युवराज के पास 1 है तो रोहित के पास 2. इतनी चीजें ही पॉसिबल है ना. इतनी चीजें ही पॉसिबल है. मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ सो दैट यू आर comfortable in reading it. So what are we saying? We are saying that युवराज ऊपर, रोहित नीचे, ये दोनों साथ में आएंगे कहीं पर भी. युवराज के पास अगर 1 है तो रोहित के पास 4, युवराज के पास 2 है तो रोहित के पास 5, युवराज के पास 3 है तो रोहित के पास 6, युवराज के पास 4 है तो रोहित के पास 7 है. ये 4 केसेस पॉसिबल हैं. ये 4 केसेस पॉसिबल है ना. तो अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल गया है एक पहले क्लू से. लेट्स गो फॉरवर्ड. देयर वर एटलीस्ट 4 पर्सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ उदय. ये देखिए, सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिए. देयर वर एटलीस्ट 4 पर्सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ उदय. इसका मतलब क्या होता है? उदय का रैंक, अगर उदय के आगे कम से कम 4 लोग हैं तो उदय का रैंक कौन सा हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है ना. उदय के आगे कम से कम 4 लोग हैं, तो फर्स्ट में उदय कैंसिल, यू. सेकंड में उदय कैंसिल, थर्ड में भी उदय कैंसिल, फोर्थ में भी उदय कैंसिल. उदय हो सकता है 5, 6, 7, है ना. उदय हो सकता है 5, 6, 7. तो मैं बस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो उदय है ये हो सकता है 5 और 6 और 7. ओके, उदय कैन बी 5, 6, 7. फिर क्या दिया हुआ है? एंड नन ऑफ देम वांटेड टू परचेज अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स देन हिम. किसी को उदय से कम चीजें नहीं खरीदनी थी, उदय से ज्यादा ही चीजें खरीदनी थी. ओके, उदय से ज्यादा ही चीजें खरीदनी है. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो उदय के आगे जो लोग हैं, कम से कम 1, 2, 3, 4, इनकी नंबर ऑफ आइटम्स उदय से कम तो बिल्कुल नहीं. उदय से कम बिल्कुल, इसका मतलब कम से कम 4 लोगों के पास उदय से ज्यादा आइटम्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम है 7, फिर 6, फिर 5 and 4, उदय के पास या तो 1 होगा आइटम, या तो 2, या तो 3. उदय के पास या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, तो 3 होगा. तभी उससे आगे कम से कम 4 लोग नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होंगी ना. हम ऐसा बोल रहे हैं कि उदय से ज्यादा आइटम्स कम से कम 4 लोगों के पास है. तो जो टॉप 4 आइटम्स है 7, 6, 5, 4, इतने तो आगे होने चाहिए ना उदय से. सो उदय के आइटम्स हो सकते हैं 1 या 2 या
3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 या 2 या 3। उदय के पास हो सकता है 1 या 2 या 3। ओके, चलिए एक और चीज हमें समझ में पता चली कि रोहित जो है, रोहित के पास या तो 4 है या 5 है या 6 है या 7 है। रोहित के पास या तो 4 या 5 या 6 है, तो रोहित कहीं ना कहीं इधर ऊपर ही आएगा, रोहित नीचे नहीं आएगा, रोहित कहीं ना कहीं ऊपर ही आएगा, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The persons who wanted to purchase, the person singular who wanted to purchase the least number of items was standing 2 places away from Vikas। देखिए जिसको लीस्ट नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितना, ये जो लीस्ट नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितना, वन आइटम, जिसका 1 आइटम है वो विकास से 2 प्लेसेस अवे है। देखिए अवे यूज किया है, अवे मतलब ऐसा नहीं कि फ्रंट में या बिहाइंड में, अवे मतलब बस 2 प्लेसेस अवे, विकास से 2 प्लेसेस अवे है वो इंसान। तो चलिए इसको नोट करते हैं। 1 जिसका भी आइटम है 1, ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, ये है विकास और ये है 2 प्लेसेस अवे। तो 1 वाला यहाँ पर होगा या तो 1 वाला यहाँ पर है ना। विकास तो 1 नहीं है ये पता चल गया हमें, तो भैया जो विकास है वो 1 नहीं है, ये हमें पता चल गया। विकास है वो 1 नहीं है ये पता चल गया। इट कैन बी लाइक दिस, या तो ऊपर होगा 2 प्लेसेस अवे मतलब 1 and 2, 2 प्लेसेस अवे, 1 and 2, 2 प्लेसेस अवे, नीचे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया गया, संदीप who was not standing at either end was standing in front of विकास। देखिए संदीप जो है वो विकास के फ्रंट में है और संदीप इधर एंड में नहीं है। ओके, देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट में संदीप कैंसिल कर दीजिए, लास्ट में भी संदीप कैंसिल कर दीजिए। नाउ संदीप विकास के, सॉरी संदीप was not standing in either end, was standing in front of विकास, विकास के आगे है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई संदीप और विकास का सिचुएशन कैसा होगा, ऐसा संदीप पक्का विकास के आगे है, तो ये तो पक्की बात है, संदीप पक्का विकास के आगे है। इसका मतलब हमें क्या क्या पता चल गया कि भैया संदीप फर्स्ट नहीं दिया हुआ है, संदीप लास्ट भी नहीं, ये भी दिया हुआ है, विकास फर्स्ट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट नहीं विकास कैंसिल, फर्स्ट नहीं विकास कैंसिल, बिकॉज विकास के आगे संदीप है, विकास के आगे संदीप है, राइट। संदीप लास्ट नहीं है, संदीप 6 हो सकता है तो विकास 7 पे आ जाएगा, राइट। संदीप 6 हो सकता है तो विकास 7 पे आ जाएगा, वो पॉसिबल है। ठीक है, ओके, टेबल को ध्यान से देखिएगा एंड आई एम सजेस्टिंग दैट आप भी मेरे साथ टेबल बनाते रहिए, सो दैट जब मैं टेबल बनाऊं तो आप भी वही डेटा एंट्री कीजिए, सो दैट हो सकता है कि मेरे से आगे आप सॉल्व कर लें इसको, राइट। एंड ये भी हो सकता है कि अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, इसको सुधारना पड़ेगा, राइट। ओके, चलिए डेटा के पास वापस चलते हैं। The person standing immediately in front of Anand, the person standing immediately in front of Anand wanted to purchase 2 items less than Uday। अब ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट मिली हमें, यहां से स्टार्ट कीजिए पढ़ना, 2 items लेस देन उदय। कोई ऐसा इंसान है जो उदय से 2 items लेस, उदय से 2 आइटम कम परचेज करना चाहता है। देखिए उदय का हमने ये डिसाइड किया हुआ है, उसके आइटम्स हो सकते हैं 1 या 2 या 3, उदय के नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं 1 या 2 या 3, है ना। बट अभी पता चला कि कोई ऐसा इंसान भी है जिसके नंबर ऑफ आइटम्स उदय से 2 कम है, तो चलो क्या उदय का आइटम 1 हो सकता है, नहीं, बिकॉज 1 से 2 आइटम्स लेस माइनस में चला जाएगा। क्या उदय का आइटम 2 हो सकता है, नहीं, बिकॉज वो 0 हो जाएगा, 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो उदय हैज टू हैव 3 आइटम्स, उदय हैज टू हैव 3 आइटम्स, और अगर उदय के 3 आइटम्स हैं 3, तो उससे आगे वाले के आइटम हो सकते हैं 4, 5, 6, 7 बस। इसका मतलब हमें उदय का पोजीशन पता चल गया, उदय का पोजीशन है 5 और उसके आइटम है 3, उदय का पोजीशन पता चल गया 5 पोजीशन, क्योंकि उसके ऊपर सारे उसके ज्यादा वाले होने चाहिए,
तो उसके ऊपर आएंगे 4 5 6 7 किसी भी ऑर्डर में, अभी नहीं मालूम हमें। ओके ओके, 1 वाला इंसान 1 एंड 2 इधर नीचे आएंगे, 1 एंड 2 यहाँ पर नीचे आएंगे, राइट, क्योंकि 3 के ऊपर हमेशा 4 5 6 7 ही आ सकता है, 4 5 6 7 ही आ सकता है। ओके, युवराज के पास पॉसिबल है 1 2 या 3 या 4, अब 3 तो पॉसिबल नहीं, तो रोहित का 6 नहीं हो सकता, तो रोहित में हम 6 को कैंसिल कर देंगे, रोहित में हम 6 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। युवराज हो सकता है 1 2 या 4, एंड सिमिलरली रोहित हो सकता है 4 5 या 7, रोहित हो सकता है 4 5 या 7, ठीक है। नीचे जो है अब कौन आएगा, 1 वाला इंसान अब विकास के ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब विकास के आगे होगा या नीचे होगा, 1 वाला इंसान पक्का विकास के नीचे ही होगा, 1 वाला इंसान पक्का विकास के नीचे ही होगा। सो अब सोचिए 1 कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अगर मैं 1 को यहाँ लेता हूँ 7th पोजीशन पे, 1 को 7th पोजीशन पे लेते हैं, तो इधर विकास होना चाहिए, विच इज नॉट राइट। इसका मतलब 1 कहाँ होगा, यहाँ पर 6th पोजीशन पे, तो 1 वाला 6th पोजीशन पे होगा, 1 यहाँ पर, ओके। उससे 2 प्लेसेस अवे विकास, तो ये हो गया विकास, विकास के इमीडिएटली ऊपर संदीप, ये हो गया, ठीक है। रोहित के पास 4 5 या 7 होना चाहिए, ना ये विकास है ना यहाँ रोहित है ना यहाँ रोहित है, रोहित ऊपर ही होना चाहिए, पहले में नहीं आ सकता, तो रोहित कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, रोहित कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। ओके, युवराज किधर आएगा, युवराज एंड रोहित, युवराज एंड रोहित एक दूसरे के ऊपर है, एक ऊपर नीचे आएंगे, तो रोहित अगर यहाँ, ये कौन बच गया, यहाँ पर आएगा युवराज, तो मैं यहाँ पर इनको कैंसिल करके यहाँ पर युवराज लिखता हूँ, ये हो गया रोहित, ये हो गया संदीप, ये हो गया युवराज, ओके। तो युवराज, रोहित, संदीप, विकास, उदय, इतने लोग हमें मिल चुके हैं, ठीक है। बचे कौन कौन है, विकास आ गया, 1 यहाँ पर, ऑब्वियसली 2 यहाँ पर आएगा, जो भी होगा 2, ठीक है, ओके। यहाँ तक अभी इतनी डिटेल्स फिक्स हो गई है। रोहित के पास 6 नहीं है, ये पक्की बात है, रोहित इज नॉट 6, राइट। युवराज हो सकता है 1 2 या 4, ऑब्वियसली युवराज 1 या 2 नहीं हो सकता, बिकॉज 1 2 यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये भी गया पॉसिबिलिटी, ये भी गया पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली युवराज विल हैव 4 एंड रोहित विल हैव 7, तो युवराज के आइटम्स है 4, रोहित के आइटम्स है 7, 3 1 2 4 7, संदीप और विकास में 5 और 6 हो सकते हैं, राइट। ओके, लोग कौन से बचे हुए हैं, लोग कौन से बचे हुए हैं, सो वी गॉट इमरान, अनंत, अनंत वाला भी एक इंफॉर्मेशन था हमारे पास, देखिए अनंत किधर गया, यस ये रहा, द पर्सन स्टैंडिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अनंत वांटेड टू परचेज 2 आइटम्स लेस देन उदय, उदय से 2 आइटम का मतलब 1, इसका मतलब है कि अनंत के आगे वाला इंसान का 1 आइटम है, सो अनंत 1 के पीछे है, ये पता चल गया, अनंत 1 के पीछे है, सो ये सेकंड आइटम वाला, ये 1 के पीछे वाला ये है अनंत, सो लेट मी जस्ट कैंसिल दिस एंड राइट डाउन अनंत, इसका मतलब है अब एक ही इंसान बचा है इमरान, सो इमरान विल हैव 1, सो युवराज, रोहित, संदीप, विकास, उदय, इमरान, अनंत, 1 to 7 positions, 4 आइटम, 7 आइटम, 3 1 2, बचे हैं 5 and 6, संदीप एंड विकास का हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेट्स चेक, क्या संदीप विकास का इंफॉर्मेशन है हमारे पास, 5 या 6 में से क्या होगा, 4 places, no, okay, so we do not know 5 या 6 में से क्या आएगा, so 5 या 6 में से कोई एक, 6 या 5 में से कोई, this is the solution table, है ना, आपने साथ में सॉल्व किया मेरे साथ, तो नाउ यू नो कितना टाइम लगता है, बट अगर यही सेम चीज आप अकेले करेंगे, so believe me you will go faster, अभी हमें ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, because we are explaining each and every term, right, please understand, I am teaching you, I am doing it with you, that is why you cannot put a time limit here, because I want to make sure हर एक स्टेप, हर एक लॉजिक अच्छे से कम्युनिकेट हो, अच्छे से कन्वे हो, राइट, बट यही सेम चीज जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, so you should take maximum 7 to 8 minutes, and that is what I had given you in the beginning, है ना,
तो चलिए अब हमारा टेबल फिनिश हो चुका है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स अमंग द 7? हाईएस्ट कौन है? 7 वाला रोहित. तो हमारा आंसर होगा रोहित. क्वेश्चन 2. हाउ मेनी पर्सन्स हैड अ हायर नंबर ऑफ आइटम्स देन अनंत? अनंत के पास कितने आइटम्स है? अनंत के पास 2 है, मतलब 5 लोग के पास अनंत से ज्यादा आइटम है. आंसर इज 5. सॉरी, या. क्वेश्चन 3. Who was standing immediately in front of the person with the second highest number of items? Second highest मतलब 6. 6 के आगे कौन खड़ा था ये पूछा हुआ है ना. सेकंड हाईएस्ट के इन फ्रंट ऑफ. 6 के आगे कौन है? चलो चेक कर लो. 6 के आगे 6. अब प्रॉब्लम है कि 6 किसके पास है यही नहीं मालूम अपने को. 6 विकास के पास हो सकता है या संदीप के पास हो सकता है. अगर संदीप के पास है तो रोहित इज द आंसर. अगर विकास है तो संदीप इज द आंसर. सो वी डोंट नो. That means answer आएगा can not be determined. And question 4. For how many persons can it be said that all the persons standing in front of them have a lower number of items than them? आगे वालों के पास lower, all सारे आगे वालों के पास lower. ऐसे कितने लोग हैं? चलो चेक करते हैं. जैसे कि रोहित का अगर गिनो आप तो रोहित के आगे युवराज और उससे कम है, तो रोहित एक आएगा ऐसा इंसान. संदीप विकास नहीं बोल सकते क्योंकि उनके सामने रोहित 7 वाला खड़ा है. ये सबके पास प्रॉब्लम है बिकॉज रोहित खड़ा है 7 वाला. उदय के बारे में नहीं बोल सकते बिकॉज उदय के आगे तो सब ज्यादा वाले हैं. इमरान के आगे तो सब कुछ ज्यादा वाले हैं. अनंत के आगे भी ज्यादा वाले हैं. तो ऐसा सिर्फ एक ही इंसान के लिए कह सकते हैं, रोहित के लिए. एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 1. देखो युवराज के लिए नहीं कह सकते बिकॉज युवराज के आगे कोई है ही नहीं, तो आप युवराज को नहीं कंसिडर कर सकते. So answer is 1, Rohit. 1 कौन? Rohit. Beautiful question. Very very difficult. काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज्ड रफ वर्क चाहिए, राइट. चलिए विद दैट लेट्स मूव ऑन इन आवर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस. ओके, अनदर सेट अरेंजमेंट 6 is on the screen. So try to read everything, try to spend some time with the data. Once again I am giving you about 8 minutes to understand the data and create your solution. So take a pause for 8 minutes, create the solution and resume after you are done. Alright, so I hope by now you have spent some time with the data, you have tried to prepare your solution, right? So let me take you through the questions. Question 1 is on the screen. Who among the following is definitely sitting adjacent to F? Who among the following is definitely sitting adjacent to F? Option A is A, then option B is G, option C is B, and option D is none of the above, right? So if you have already prepared your solution table or your solution chart, then you should take about 1 minute to solve this one, not at all more than that. But if you are yet to create your solution table, I will still give you 3 to 4 minutes. So take 3 to 4 minutes if you have not prepared the solution, if you need more time. And if you have prepared the solution, take about 1 minute to mark your answer. So pause the video, take appropriate amount of time, and then resume after you are done. Alright, so I hope by now you have marked your answer. That is question number 1. Question 2. What is the color of the dress of the spouse of D? Color of the dress of spouse of D. So once again, if you have prepared your table, it should take you about 30 seconds to just observe what is your answer, right? So I'm going to give you 1 minute if you have prepared your solution table. But if you have not, so again take 3 to 4 minutes. I'm fine with that. 3 to 4 minutes if you are yet to prepare the solution table. So pause the video for appropriate time and then resume after you are done. Alright, so I hope you are done with question number 2. You have marked your answer. Question 3. Both the persons sitting adjacent to which of the following persons are wearing the dress of the same color? Okay, interesting question. So both the persons sitting adjacent to one of these is wearing the same color dress, right? So once again, if you have prepared the table, it might take you 1 minute, maximum 1 minute to observe and mark your answer. If not, if you are yet to prepare the table, take 3 to 4 minutes, right? So pause the video, try to solve this one and resume after you are done.
Okay, cool. So I believe till now you have marked your answer. That was question 3. Let me take you to the last question of this set. The spouse of which of the following persons is wearing a red dress? The spouse of which of the following person is wearing a red dress? C, D, E, none of this. Simple enough. You should take not more than 1 minute to mark, to observe and mark your answer if you have prepared the table. If not, I would give you 3 to 4 minutes to prepare the solution table once again, and then mark your answer. So pause the video for appropriate time and then resume when you are done. Alright, so that was question 4, right? So now this was not a simple set, correct? This is not a simple set. So let's try and solve it together. चलिए एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले डेटा को पढ़ के समझ लेते हैं दिया क्या हुआ है. So 8 persons A through H were sitting around a circular table with 8 equally spaced chairs. There are exactly 4 married couples among the 8. So that's a good information that there are exactly 4 couples. Among the 8 persons, A, D, E, F are males. देखिए एक और important data मिल गया है. A, D, E, F are males. So A to H लोग हैं, A, D, E, F males हैं. So let's do one thing. Let's just mention them somewhere. So A, D, E, and F are males. That means B, C, G, and H are females. Right? So that's good to know. Okay, what else? Each person wore a dress of a color among red, blue, green. देखिए red, blue, green में से कोई एक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, right? ठीक है. It is known that any 2 persons wearing a dress of the same color neither sit adjacent to each other nor sit opposite to each other. देखो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है. इसका मतलब लेट्स से अगर हमें ऐसा पता चला कि A and B साथ में बैठे हैं, that means उन्होंने सेम कलर ड्रेस नहीं पहना होगा. That means उन्होंने सेम कलर का ड्रेस नहीं पहना होगा, right? That's an important information. Similarly, let's say हमें पता चला कि A and B ऑपोजिट बैठे हैं, तो भी उनका ड्रेस का कलर सेम नहीं होगा, right? So that's a good piece of information. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now further, any 2 persons married to each other do not wear dress of the same color. Do not sit adjacent to each other and do not sit opposite to each other. देखो बहुत अगेन अच्छी इंफॉर्मेशन है. अगर A and B मैरिड है तो वो एडजसेंट नहीं बैठ सकते. अगर A and B मैरिड है तो वो ऑपोजिट भी नहीं बैठ सकते. अगर A and B मैरिड है तो वो सेम कलर का भी ड्रेस नहीं पहन सकते. So that's good piece of information because now we get to the constraints, right? अब हमें constraints का धीरे धीरे पता चला है. Okay, so till now everything is fine. Okay, we know that no 2 people who are wearing the same dress can sit adjacent or opposite. No 2 people who are married to each other can wear same dress color, nor can they sit adjacent to each other, neither they can sit opposite to each other. So अभी तक हमें इतने सारे constraints पता चले. Okay, now we focus on the data that has been given. देखिए पहला data. A, who was wearing a green dress, was sitting opposite C, while E, who was wearing a blue dress, was sitting opposite G. A is wearing green and A is sitting opposite to C. So now I will try to put this data somewhere on the rough board. Okay, first of all, चलिए A जो है वो green पहना हुआ है. So let's do one thing. Let's just prepare a small table in which we will have the spouse and the dress color. Okay. So here I have color, here I have spouse. Now A is wearing green. A is wearing green. Okay. A is wearing green. And what else? A is wearing green, was sitting opposite to C, while E is wearing blue, was sitting opposite to G. So A, C opposite है, E and G opposite है. Okay. So E is blue, right? Spouse. Now please understand, those who sit
opposite to each other cannot be spouse, right? Cannot be a couple. So A का spouse C नहीं हो सकता. A का spouse C, A के spouse कौन कौन है? B C G H, है ना? A का spouse B C G H हो सकता है because A मेल है तो spouse फीमेल ही होगी. So A का spouse C नहीं है. E का spouse G नहीं है, इतना पता चला है. E का spouse G नहीं है, इतना पता चला है, right? Similarly, let's try to have sitting arrangements, and we need to have 8 places. So let's say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and then we need 4 more. These are the 8 positions. Okay, I'll name them. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now, as of now, I'm assuming that A is sitting at this position. A is sitting at this position. So we know that A के opposite में C है. So A के opposite में हमने C रख दिया है यहाँ पर. Okay. So हमारा काम क्या है? Constraint के हिसाब से ये sitting arrangement, circular arrangement को भरना है, right? So I'm just assuming that A is at first position, and हमें पता है कि A and C are opposite to each other. So that means A and C opposite to each other are. एक और piece of information क्या था? That E and G. So E, who was wearing a blue, is sitting opposite to G. E and G. So, sorry. Okay. E and G. So G में भी E नहीं आ सकता. Okay. G का spouse E नहीं हो सकता. C का spouse A नहीं हो सकता. Okay. C का spouse A नहीं हो सकता. यहाँ तक पता चला है. Okay. दूसरी चीज, E and G are opposite to each other. So इसको mention कर देते कहीं साइड में. So E and G are opposite. ये मैंने लिख दिया है. E and G opposite है. Okay. चलो A का अगर ग्रीन है और A के सामने C है तो C में ग्रीन नहीं हो सकता. C में ग्रीन कैंसिल है ना. ये मैं G मतलब ग्रीन को कैंसिल करता हूँ. सिमिलरली E का ब्लू है और उसके सामने G है तो G का ब्लू नहीं हो सकता. G का ब्लू नहीं हो सकता. Right? Please understand one thing, that from one piece of information it might be possible that आप उससे 4-5 inferences निकाल सकते हैं. You can deduce 4-5 pieces of information from one piece of information, right? तो जितना आपके पास information है उससे जितना आप deduce कर सको वो सब एक साथ कर देना. That is the way to solve these questions. Okay? तो यहाँ तक अभी अपन को डेटा पता चला है. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. What more have we been given? H is the spouse of F. देखो अच्छा इंफॉर्मेशन सीधा दे दिया है. H is the spouse of F. H is the spouse of F. तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? H is the spouse of F. वापिस आते हैं अपने डेटा में. H का स्पाउस F है तो F का स्पाउस H, H का स्पाउस F. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कपल है F and H. ये कपल है. देखिए A के लिए C ऑप्शन चला गया था, H भी चला गया, तो क्या हम बोल सकते हैं? A का स्पाउस होगा या तो B या G. A का स्पाउस होगा या तो B या G, है ना? क्योंकि A के लिए H का ऑप्शन चला गया और C का ऑप्शन चला गया. E देखिए E के लिए G भी नहीं है और H भी नहीं है, तो बचा B और C. बचा क्या? B और C, है ना? E के लिए बचा क्या? B और C. ओके. D के लिए क्या ऑप्शन बचे हैं? D के लिए बचे हैं, चलो H नहीं हो सकता, B C G उसमें से कुछ भी हो सकता है D में, है ना? D में B C G इसमें से कुछ भी हो सकता है. B C G में से कुछ भी हो सकता है. D के लिए D मेल है, so we are talking about his wife here. So D के लिए बस H वाला ऑप्शन अभी नहीं है, बाकी B C G इतने ऑप्शन बचे हुए हैं. ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. While D, who was not wearing a red dress, is not the spouse of G. देखिए एक और अच्छी इंफॉर्मेशन. D जो है उसने रेड नहीं पहना है, नंबर 1, और उसका स्पाउस G नहीं है. सो D वाले में से G निकाल दीजिए. तो D में बचा BC, E में बचा BC, A में बचा है BG. D ने रेड नहीं पहना है, ये एक और इंफॉर्मेशन. D ने रेड नहीं पहना है, that is one more information. Okay, now look at the table. D and E both are male. Okay, both are male. D की वाइफ B या C में से एक,
ई की वाइफ भी बी या सी में से एक। दैट मीन्स हम ये पक्का बोल सकते हैं कि डी ई एंड बी सी, डी या ई में से वाइफ उनकी होंगी बी या सी। सो ए एंड जी हस्बैंड एंड वाइफ मिल गए, ए एंड जी। सो दैट मीन्स ए की वाइफ इज जी ओनली। सो यहां से हम निकाल देते हैं ए की वाइफ जी है। सिमिलरली जी का हस्बैंड ए है। ए का कलर ग्रीन है, जी में ब्लू नहीं है, जी में ब्लू नहीं है, ग्रीन भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? रेड आएगा। ग्रीन नहीं, ब्लू नहीं, रेड आएगा। जी का हस्बैंड ए है, ए का कलर है ग्रीन, ए की वाइफ है जी। ओके, यहां तक चीजें अभी क्लियर हुई है अपने पास, राइट? डी ने रेड नहीं पहना है, डी ने रेड नहीं पहना है, डी की वाइफ बी या सी में से कोई है, ई की वाइफ बी या सी में से कोई है। ओके, यहां तक अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ए एंड जी आर वन कपल। सो कपल्स को मैं लिख देता हूं यहां पर, ए जी एक कपल, देन एफ एच भी एक कपल, एफ एच। बी ई में से उनके स्पाउस होंगे बी या सी, है ना, बी या सी। ओके, चलिए, ई का बी सी, डी का बी सी। अब इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास? यहाँ पर एक लास्ट बचा हुआ है, बी हु वाज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस। देखिए बी का ग्रीन ड्रेस है, was sitting to the left of C, was sitting to the left of C and to the right of spouse of C। देखिए बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लास्ट स्टेटमेंट में। पहले बी हु वाज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस, तो सबसे पहले बी को आप ग्रीन पहना दीजिए, तो बी का है ग्रीन। ओके, ग्रीन, ए का ग्रीन है, ए का ग्रीन है, सो बी जो है वो ए के आजू बाजू नहीं आ सकता, तो यहाँ पर मैं बी को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बी को कैंसिल कर देता हूँ। ए का ग्रीन है तो बी इधर इधर नहीं आ सकता, राइट? ओके, सी का कलर क्या है? सी का कलर नहीं मालूम अभी तक, सी का कलर ग्रीन नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। जी का कलर रेड है, लेकिन यहाँ पर जी नहीं मिला है हमें, कोई बात नहीं। चलिए, सिर्फ इतना पता चला कि बी का कलर ग्रीन है, राइट? बी का कलर ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी या सी, बी का जो हस्बैंड होगा डी ई में से, बी का जो हस्बैंड होगा उसका सेम कलर नहीं होना चाहिए। सी का कलर ग्रीन नहीं है तो सी भी हस्बैंड हो, सॉरी डी का कलर रेड नहीं है तो डी भी हस्बैंड हो सकता है उसका। ई का कलर ब्लू है तो ई भी उसका हस्बैंड हो सकता है ना? ओके, डेटा पे चलते हैं। बी हु वाज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखिए सी के लेफ्ट में, वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी किधर है? इधर है। सी का लेफ्ट किधर आएगा? इस तरफ। सी का लेफ्ट ये वाला होगा, तो सी ऐसे फेस कर रहा है, तो बी इज सिटिंग हियर, बी इज सिटिंग हियर, राइट? बी का कलर क्या है? ग्रीन। बी इज सिटिंग हियर टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड was sitting to the left of C and to the right of the spouse of C, to the right of the spouse of C। C के स्पाउस के राइट में, मतलब ये जो B है वो C के स्पाउस के राइट में है। इसका मतलब C का स्पाउस यहाँ आएगा। C का स्पाउस कौन हो सकता है? D या E में से कोई एक। सो कैन वी से दैट यहाँ पर D या E में से कोई एक आएगा, D या E में से कोई एक। B इधर इधर है, यहाँ पर D या E में से कोई एक। इतना चीज क्लियर है अभी एज ऑफ नाउ? यस, यहाँ पर D या E में से कोई एक। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, H F यहाँ पर आने बाकी हैं और वो क्रॉस में नहीं आ सकते, है ना? जो मैरिड है वो क्रॉस में नहीं है, जो मैरिड है वो क्रॉस में नहीं है। ए जो है उसकी वाइफ जी है, तो ए के अगल बगल में भी जी नहीं आ सकती, तो जी को हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं। इधर जी कैंसिल, इधर भी जी कैंसिल, यहाँ पर भी जी नहीं आ सकता, तो जी के लिए जगह बची सिर्फ ये है, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, क्योंकि जी के लिए ये पोजीशन कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर ऑलरेडी सी है, यहाँ पर ऑलरेडी बी है, यहाँ पर डी या ई में से कोई एक है, यहाँ पर डी या ई में से कोई एक है ना? यहाँ इतना चीज अभी तक अपने पता चला है कि एच और एफ कपल है, ए जी कपल, एफ एच कपल। अब कपल कौन है ये निकालना पड़ेगा, राइट? हु आर द कपल्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, एक चीज है अपने पास कि भाई डी या ई में से, डी या ई में से स्पाउस बी या सी है, इतना पता है हमें पक्का। सो लेट्स डू वन थिंग,
केसेस बनाते हैं, केसेस। चलो केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर मैं डी का स्पाउस सी ले लूं, अगर मैं डी का स्पाउस सी ले लूं, चलो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी, और ये मैं केस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, जहां जहां पर मैं केस कर रहा हूँ उसको मैं ऐसे स्टार कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि इसको कैंसिल आउट करना है। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेस्टिंग। इसका मतलब जहां जहां पर मैंने स्टार किया होगा वो चीज हम टेस्ट कर रहे हैं बस। तो डी का स्पाउस अगर हम सी ले लें तो ई का स्पाउस होगा बी, स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। ई का स्पाउस होगा बी, तो दो कपल मिले हमें, एक कपल मिला हमें डीसी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डीसी स्टार, और एक और कपल मिला हमें ईबी, ईबी स्टार। चलिए डीसी इज अ कपल, ईबी इज अ कपल, ठीक है, ओके। नाउ ई का कलर ब्लू है, ई का कलर ब्लू है, और उसका स्पाउस बी है, बी का कलर ग्रीन है, ठीक है, दैट इज फाइन, ओके। नाउ यहाँ पर डी आई में से कौन आएगा, सी स्पाउस, बी के राइट में सी का स्पाउस है ना, देखिए वो सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ स्पाउस ऑफ सी, सी का स्पाउस आएगा वहां पर। तो सी का स्पाउस कौन है, सी का स्पाउस डी है ना, और बी का स्पाउस क्या लिया हमने, सी। देखिए स्टार कर रहा हूं, याद रखना सी का स्पाउस इज डी, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डी, स्टार किया है, ओके, वहां पर किया है डी। चलिए जी ने रेड पहना हुआ है, ए ने ग्रीन पहना हुआ है, बी ने ग्रीन पहना हुआ है, ठीक है, बी का ग्रीन है, सी का कलर फिलहाल नहीं पता, लेकिन सी का स्पाउस डी है, सी का स्पाउस डी है, ओके। यहाँ पर बी नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, करेक्ट। चलिए डी का स्पाउस कौन है, सी, तो इधर भी सी नहीं आ सकता, करेक्ट, ओके। कपल सारे मिल गए हैं, ये केस अज्यूम करके। अब बाकी क्या है, पोजीशंस, बाकी क्या है, पोजीशंस और कलर, ठीक है। देखिए C is not green, D is not red, and they are a couple. E is blue, B is green, and they are a couple. Correct? G red है, G का स्पाउस कौन है, A ग्रीन है। तो कपल्स मिल गए लेकिन उनके कलर नहीं मिले अभी तक, राइट। ओनली हमें पता चला कि G is red, E is blue, D में रेड नहीं है, that is what we know, D में रेड नहीं है, D का स्पाउस C है और C में ग्रीन नहीं है, करेक्ट, ओके। अब आते हैं सिटिंग पोजीशन पे। सिटिंग पोजीशन पे हमें क्या पता है अभी तक, ई के ऑपोजिट जी आना चाहिए बॉस, ई के ऑपोजिट जी आना चाहिए। क्या इजी यहाँ आ सकते हैं, नो। क्या इजी यहाँ आ सकते हैं, नो। तो ई एंड जी यहाँ ही आ सकते हैं बस 4x8 में। देखिए ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ई एंड जी ऑपोजिट होने चाहिए। इधर ऑलरेडी डी आ गया, तो ये ऑपोजिट वाला चला गया, ये जो ऑपोजिट है वो यहाँ इजी नहीं आ सकता। इधर ऑलरेडी बी है, तो ये वाला भी ऑपोजिट चला गया। इधर ऑलरेडी AC है, तो ये वाला भी ऑपोजिट चला गया। तो एक ही ऑपोजिट का पेयर बाकी है, वो है 4 and 8। यहीं पर E and G आ सकते हैं। नाउ इधर G नहीं है, तो ऑब्वियसली G यहाँ नहीं आएगा, तो कौन आएगा, E आएगा। और मैं स्टार कर रहा हूँ बिकॉज हमने यहाँ पर अज्यूम करा हुआ है। इधर E है तो इधर कौन आएगा, G, करेक्ट। सो E and G मिल गए हमें, राइट, E and G मिल गए। C का कलर नहीं मालूम, G का कलर मालूम है, G का कलर रेड है, तो C रेड नहीं हो सकता, C रेड नहीं हो सकता। C रेड नहीं मतलब ग्रीन नहीं है, रेड नहीं, तो C का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया ब्लू, और मैंने उधर स्टार किया हुआ है, C का कलर ब्लू है। चलिए अगर C ब्लू है तो D रेड तो ऑलरेडी नहीं है, ब्लू भी नहीं हो सकता, तो D हैज टू बी ग्रीन। तो D है ग्रीन, अगेन मैंने वहाँ पे स्टार किया हुआ है ताकि जब ये केस कैंसिल हो तब मैं इसको वापस मिटा सकूं। ओके चलिए D ग्रीन है, D इज ग्रीन, तो लिख देते हैं कि D इज ग्रीन, स्टार किया हुआ है मैंने, ओके। सो ये अगर D ग्रीन है तो B भी ग्रीन हो गया, B तो ऑलरेडी ग्रीन था, D ग्रीन है तो B भी ग्रीन है, बट दो ग्रीन वाले साथ में नहीं बैठ सकते। गाइस दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू रिफ्यूट दिस केस, ये केस सही नहीं है। दो ग्रीन वाले साथ में नहीं हो सकते, इसका मतलब
सत्यानाश, यहाँ तक जो हमने पहला केस अज्यूम किया था वो गलत है। एंड दिस इज व्हाट इज सपोज टू हैपन। अगर आप एक गलत पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे आप कहीं ना कहीं आके अटक जाएंगे। सो दैट मीन्स कि डी का स्पाउस सी नहीं है। दैट मीन्स डी का स्पाउस सी। जितना भी स्टार किया है आपने उसको हटा दीजिए, जितना भी स्टार किया है उसको हटा दीजिए आप। राइट, ये जी यहाँ से हट जाएगा, ये डी स्टार यहाँ से हट जाएगा, ये जी स्टार यहाँ से हट जाएगा, ये ई स्टार यहाँ से हट जाएगा, ये दो कपल्स यहाँ से हट जाएंगे। ओके, क्या पता चला हमें कि डी का कपल सी नहीं है, इसका मतलब डी का कपल कौन होगा? बी। और ये ट्रू है, तो बी का कपल भी डी। ओके, सिमिलरली ई का कपल कौन होगा? सी। So E की wife is C and C का husband is E and once again this is true. So couple फिर से हमें सारे मिल गए, सही वाले couple मिल गए। चलो AGHF, next is DB and CE. These are the couples, DE and CE. Okay, चलो C and E are couples. E का कलर ब्लू है, C का कलर ब्लू नहीं हो सकता, सी का कलर ब्लू नहीं हो सकता। सिमिलरली सी का ग्रीन भी नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ऑपोजिट है ये लोग। तो सी का ग्रीन भी नहीं है, ग्रीन नहीं है, ब्लू नहीं है, तो क्या होगा? सी का कलर होगा रेड। चलो सी का कलर रेड, तो सी इज रेड, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सी की वाइफ है ई, ई का कलर है ब्लू, दैट्स गुड। चलो ई ब्लू है, ई के सामने जी है, ई ब्लू है और ई के सामने जी है। देखो यहाँ पर बी नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, हमने पता कर लिया था। इजी क्रॉस क्रॉस में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कौन आएगा? बी। बी इज टू द राइट ऑफ स्पाउस ऑफ सी। तो सी का स्पाउस तो है अपने पास, कौन है सी का स्पाउस? सी का स्पाउस इज ई, तो यहाँ पर आएगा ई। और ई का कलर मालूम है हमें? हाँ, ई का कलर होता है ब्लू। इसका मतलब यहाँ ब्लू कलर वाला नहीं आ सकता। देखो इधर ब्लू नहीं आ सकता, इधर ग्रीन, ग्रीन की वजह से ग्रीन नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? रेड कलर ही आएगा, जो भी होगा। ब्लू एंड जी, ये तो लोग थे, और यहाँ पर रेड ही आएगा, जो भी होगा वो रेड होगा। देखो कलर मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ तो आपको पता चले। चलो ई या जी ऑपोजिट होने चाहिए, ई जी ऑपोजिट होने चाहिए। ये पैर गया, ये पैर गया बिकॉज इधर बी है, ये पैर गया बिकॉज इधर ई है, तो ई जी यहीं पे आ, सॉरी ई इधर है तो जी यहीं पे आ सकता है, जी यहीं पे आ सकता है। ई ब्लू है तो जी ब्लू नहीं हो सकता, जी का रेड अपने पास ऑलरेडी कलर है रेड, तो जी रेड है। राइट, अब इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज हमने उनको ऑपोजिट डाल दिया। चलिए ई के ऑपोजिट जी आ गया, ए एंड सी ऑपोजिट हो गए। राइट, ओके, कपल्स के सारे इंफॉर्मेशन है, कलर के इंफॉर्मेशन नहीं, कलर। चलिए डी जो है, डी वो रेड नहीं हो सकता, सॉरी डी का स्पाउस बी है, तो डी ग्रीन नहीं हो सकता, ग्रीन कैंसिल बिकॉज स्पाउस का कलर सेम नहीं होना चाहिए, सो डी ग्रीन नहीं है। सिमिलरली डी कहां पर आ सकता है? डी, सो वी गॉट डी बी। बी के आसपास डी नहीं आ सकता, बी के ऑपोजिट में भी डी नहीं आ सकता बिकॉज वो हस्बैंड वाइफ है, तो इधर भी डी गया। तो डी के पास कौन सी पोजीशन बची है? डी के पास पोजीशन बची है एक तो ये और एक ये। राइट, बेस्ड ऑन डी का कलर डी यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। राइट, किसका पोजीशन बाकी है? अभी पोजीशन बाकी है ए बी सी, एक डी का पोजीशन बाकी है, ई एफ एंड एच उनका पोजीशन बाकी है, एफ एंड एच उनका पोजीशन बाकी है। राइट, चलिए इधर बी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, तो एफ या एच में से कोई एक यहाँ पर आएगा, एफ या एच में से। और हमारे पास एफ एच का कलर का इंफॉर्मेशन अभी तक फिलहाल नहीं है। राइट, ठीक है, कूल। चलो डी का कलर भी नहीं है अपने पास, डी का ग्रीन है तो डी का ग्रीन हो सकता है। क्या डी का कलर और कुछ नहीं है ऐसा दिया हुआ है? while D who was not wearing red, चलो एक और चीज, डी रेड नहीं पहना हुआ है, तो डी में रेड भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ब्लू। डी इज ब्लू, इसका मतलब डी यहां नहीं आ सकता, इधर भी डी कैंसिल, डी इज ब्लू तो इधर भी कैंसिल, इधर भी डी कैंसिल, इधर भी डी कैंसिल, तो डी सिर्फ यहीं पे आ सकता है एंड डी इज ब्लू। इसका मतलब है एफ या एच कहीं यहाँ पर आएंगे, एफ या एच कहीं यहाँ पर आएंगे। करेक्ट, इधर रेड वाला आएगा, इधर ब्लू वाला आएगा,
बिकॉज इधर ग्रीन है उधर रेड है तो इधर ब्लू ही आ सकता है, करेक्ट। ओके, सो पोजिशंस पता चले हैं हमें, कलर पता चले हैं A B C D E G का, F एंड H का कलर नहीं मालूम, F एंड H का कलर नहीं मालूम, बट वी डू नो दैट वो होंगे ब्लू एंड रेड, वो होंगे ब्लू या रेड, सो ब्लू और रेड, सिमिलरली ब्लू और रेड। ओके, इसके सामने में ग्रीन है, रेड के सामने वाले में ब्लू है, so that's fine, right? I think we have all the information available. H and F का position अभी तक हम नहीं बता सकते, and I don't think we have any information जिससे हम F या H का position बता सकते हैं कि A आएगा, A के इस तरफ आएगा या A के इस तरफ आएगा, right? So with this data, let's try to answer some questions. Who among the following is definitely sitting adjacent to F? F या तो यहाँ, F का पोजीशन कहां पर है नहीं मालूम, बट F के अगर F यहाँ पर है तो उसके एडजेसेंट है E एंड A, अगर F यहाँ पर है तो उसके एडजेसेंट है A एंड G, इसका मतलब डेफिनेटली A तो आंसर आ ही सकता है, आंसर क्या आएगा A। ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी है ना, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। That was question 1. Question 2. What is the color of the dress of the spouse of D? D का spouse का कलर, चलो D का spouse है B और B का कलर है ग्रीन, देखिए D का spouse है B और B का कलर है ग्रीन, so answer is green. Option C. Again good question, easy question, easy after we have created the table and mind you मैंने आपको 10 से 12 मिनट दिए थे, 10 से 12 मिनट। Why did I give you so much amount of time? Because इस क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन आप अगर टेबल में डाल देते हो या फिर अगर आप चार्ट में डाल देते हो तो तुरंत सॉल्व नहीं हो जाएगा, आपको इसमें पॉसिबिलिटीज गिननी थी, राइट? दैट इज व्हाई आई गिव यू सम मोर टाइम। चलिए क्वेश्चन 3, both the persons sitting adjacent to which of the following persons are wearing the dress of the same color? A B F G, इनमें से किसके आजू बाजू वाले दोनों सेम कलर वाले हैं? ऑप्शन याद रखना, A B F एंड G चेक करना है, A B F G। चलिए, A के आजू बाजू दोनों में सेम कलर, नो। B के आजू बाजू दोनों में सेम कलर, ब्लू और नो। F के आजू बाजू दोनों में सेम कलर, F कहाँ बैठा ये भी पता नहीं। G के आसपास इधर भी ब्लू है, देखो मैंने लिखा हुआ है इधर ब्लू इधर ब्लू, तो यस G के आसपास दोनों वालों ने ब्लू पहना हुआ है, so we have got our answer, that is G। अच्छा क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी। वंस अगेन हमें सिर्फ कलर मालूम था, कौन बैठा ये नहीं मालूम था, so that is a tricky question, काफी अच्छा क्वेश्चन था। Question 3 is done। Question 4, the spouse of the which of the following person is wearing a red dress? ऑप्शन है C D E। C D E में से किसका या किसकी स्पाउस रेड कलर पहना हुआ है, रेड, चलो देख लेते हैं। C D E, ऑप्शन है C D E। C की स्पाउस E और E का रेड नहीं है, D की स्पाउस B और B का रेड नहीं है, E की स्पाउस C और C का रेड है, यस, so E का स्पाउस, E is the answer, E is the answer, option C। Again, it was a beautiful question, काफी डिफिकल्ट था, I would say, right, moderate to difficult में leaning towards difficult। Why? Because it's a short time duration, okay, and if I give you only 5 to 7 minutes to solve this one, it's going to be very, very difficult, and that is why if you want to solve this one, you need to have at least 10 to 12 minutes to create the entire solution, considering every possibility and then reaching towards an answer, right? So this was a great question, right? I believe this was a great practice if you wanted to solve some difficult questions. See, please mind that from the next video onwards, we are going to get into CAT questions, CAT level LR questions. So this was a good practice for you to solve those kind of questions.